Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 15 of electrochemistry. This is the last lecture in this chapter. In this lecture, the topic which we will cover is types of batteries. आइए शुरुआत करते हैं. A battery is an electrochemical cell or a series of combined electrochemical cells that can be used as a source of direct electric current at a constant voltage. तो जो बैटरी है वो बेसिकली क्या होती है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और अ सीरीज ऑफ कंबाइंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स that can be used as a source of direct electric current at a constant voltage. So battery का जो principle है, it is same as an electrochemical cell, except अंतर क्या है? A battery is completely self-contained and require no salt bridge. Battery is completely self-contained and require no salt bridge. बाकी हर मामले में बैटरी is similar to electrochemical cell. फर्क सिर्फ इतना सा है कि बैटरी is completely self-contained and require no salt bridge. There are generally two types of batteries. A. Primary batteries and B. Secondary batteries. So now let us study primary batteries and secondary batteries. A primary battery acts as a source of electricity without being previously charged by an electric current from an external source. प्राइमरी बैटरी मतलब एक ऐसी बैटरी which acts as a source of electricity without being previously charged by an electric current from an external source. जैसे हम अपने रिमोट्स में यूज करते हैं जो बैटरी, वो बैटरी प्रीवियसली चार्ज नहीं होती है, उसको आप यूज करें and it acts as a source of electricity. In such a battery, electrical energy is obtained at the expense of chemical reactivity as long as the active materials are present. So such as battery में electrical energy is obtained at the expense of chemical reactivity as long as active materials are present. करते हैं secondary battery की. A battery which can be recharged after it has been used once is called a secondary battery. Certain chemical changes occur when the cell is charged with electricity, and these changes are reversed during discharging process. तो जब चार्ज हो रही होती है बैटरी तो कुछ केमिकल चेंजेस अकर होते हैं विद इन द सेल and these changes are reversed during discharging process. Now, various primary batteries in use are dry cell battery, nickel cadmium battery, mercury battery, fuel cell, etc. The secondary battery which is widely used is lead storage battery. तो ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स याद रखने चाहिए हमें. प्राइमरी बैटरीज के एग्जाम्पल हैं ड्राई सेल बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, मर्क्यूरी बैटरी, फ्यूल सेल एक्सेट्रा. और सेकेंडरी बैटरी विच इज वाइडली यूज्ड इज लेड स्टोरेज बैटरी. पहले हम देखेंगे ड्राई सेल बैटरी के बारे में. द मोस्ट कॉमन ड्राई सेल, ड्राई सेल का मतलब है अ सेल विदाउट फ्लूइड कंपोनेंट. द मोस्ट कॉमन ड्राई सेल इज द लेक्लांच सेल यूज्ड इन टॉर्चेस एंड रिमोट्स. जो हम घर पे यूज करते हैं सेल
टॉर्च में, घड़ी में, रिमोट्स में, ये होता है लेकलांच सेल. द एनोड ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कैन or container that is in contact with manganese dioxide MnO2 and an electrolyte. तो ड्राई सेल का एनोड जिंक कैन से बनता है और जो जिंक कैन है इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ MnO2 एंड एन इलेक्ट्रोलाइट. देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ NH4Cl and ZnCl2 in water, to which starch, an inert filler, is added to thicken the solution to a paste-like consistency so that it is less likely to leak. यानी इलेक्ट्रोलाइट किससे बनता है? NH4Cl and ZnCl2 in water. और इसमें हम स्टार्च ऐड कर देते हैं. स्टार्च एक फिलर की तरह काम करता है, इनर्ट फिलर, टू थिकन द सोल्यूशन. तो सोल्यूशन को थिक करके पेस्ट की तरह बना देता है, सो दैट इट इज लेस लाइकली टू लीक. द एनोड यानी जिंक कैन. सो द एनोड इज यूजुअली कवर्ड विथ अ स्टील जैकेट टू शील्ड इट from the atmosphere. देखिए, the cathode is a graphite rod which serves as an inert electrode. The graphite rod is in the center of the cell and is surrounded by MnO2 and electrolyte. तो अब हम एक ड्राई सेल का जो इंटीरियर सेक्शन होता है उसका डायग्राम देखते हैं. याद रखिए, यहां पर एनोड का काम कौन कर रहा है? जिंक कंटेनर. और कैथोड का काम कौन कर रहा है? एक ग्रेफाइट की रॉड. ग्रेफाइट की जो रॉड है वो सेल के सेंटर में होती है और जो जिंक का कंटेनर है उससे तो सेल बना है. सो नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑफ दिस सेल. अब देखिए, जो ड्राई सेल बैटरी है उसका इंटीरियर सेक्शन हम इस डायग्राम से दिखा सकते हैं. सबसे पहले एक बाहर जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड की तरह काम करता है. सबसे बीच में एक ग्रेफाइट की रॉड है जो कि कैथोड की तरह काम करती है. और ये जो ग्रेफाइट की रॉड है इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ MnO2. सो दिस इज अ लेयर ऑफ MnO2. और इनके बीच में there is a moist paste of ZnCl2 and NH4Cl. और ये जो पेस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है. तो दिस इज हाउ द इंटीरियर सेक्शन ऑफ अ ड्राई सेल बैटरी कैन बी रिप्रेजेंटेड. की बात करते हैं. एट एनोड जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड to Zn2+, while at the cathode Mn+4 from MnO2 is reduced to Mn+3 in the form of Mn2O3. Cell reactions देख लीजिए. At anode, zinc solid goes to Zn2+ plus 2 electrons. At cathode, 2 MnO2 solid plus 2 NH4 plus 2 electrons gives Mn2O3 solid plus 2 NH3 plus H2O. और नेट सेल रिएक्शन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नेट सेल रिएक्शन. यानी Zn solid plus 2 MnO2 solid plus 2 NH4 plus gives Mn2O3 solid plus Zn2 plus 2 NH3 plus H2O. So this is the cell reaction for a dry cell. आगे देखिए. The dry cell is not rechargeable as the Zn2+ ions produced at the anode migrate through the electrolyte paste and combine with NH3 produced at the cathode
to form the complex ion ZnNH3 2 plus. सो ड्राई सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता है. रीजन क्या है कि जो एनोड पर Zn2 प्लस आयंस बने हैं, दे माइग्रेट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट and combine with ammonia produced at the cathode to form the complex ion ZnNH3 2 plus. तो अगर Zn2 प्लस अपनी जगह से छोड़कर कैथोड पर चला जाएगा, वो अपनी जगह पर अगर रुकेगा ही नहीं, तो उसको रिचार्ज करना यानी सेल रिएक्शन को रिवर्स करना पॉसिबल ही नहीं होगा. सो इस वजह से जो ड्राई सेल है वो रिचार्ज नहीं किए जा सकते हैं. वन मेजर प्रॉब्लम विद द ड्राई सेल इज दैट इफ ड्राई सेल बैटरी lie unused for over a year, it splits and leaks due to the following reaction between zinc and NH4 plus. NH4 plus कहां से आ रहा है? From NH4Cl, which slowly eats away the zinc can. मतलब अगर ड्राई सेल 1 साल से ज्यादा टाइम तक अनयूज्ड पड़ा रहा, तो ये स्प्लिट हो जाता है और लीक करने लगता है ड्यू टू द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड NH4 प्लस, विच स्लोली ईट्स अवे द जिंक कैन. रिएक्शन है Zn solid plus 2NH4 plus gives Zn2 plus plus H2 gas plus 2NH3. सो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन की वजह से जो जिंक कैन है वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये जिंक को ईट अप कर लेगा. जिंक कैन स्लोली गेट्स ईटन अवे ड्यू टू दिस रिएक्शन. सो इसलिए ड्राई सेल जो है वो बहुत ज्यादा टाइम तक अनयूज्ड नहीं रहना चाहिए. दिस प्रॉब्लम can be removed if NH4Cl in the electrolyte is replaced by KOH. The cell is then referred as alkaline dry cell, which is more expensive than the acid form containing acid salt NH4Cl, but it lasts longer because there is no corrosion of zinc by NH4 plus ions. So alkaline dry cell में क्या होता है? NH4Cl की जगह KOH यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे निकल कैडमियम बैटरी के बारे में. निकल कैडमियम बैटरी is a portable and rechargeable battery. It is recently developed and has advantages over the dry cell battery. Although it is more expensive than a dry cell, the added expense is worthwhile as it can be recharged. अब जबकि हमने सेल रिएक्शन देख लिया है, तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो सेल रिएक्शन है वो रिवर्सिबल क्यों है. The cell reaction can be readily reversed because the reaction products यानी NiOH2 and CdOH2 adhere to the electrode surface. Adhere मतलब चिपके रहते हैं, इलेक्ट्रोड सरफेस पर ये चिपके रहते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं, ये आयंस नहीं है. ड्राई सेल में आयन था Zn2 प्लस, यहां पर सॉलिड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो ये अपने ही इलेक्ट्रोड पर चिपके रहेंगे. और अगर ये अपने इलेक्ट्रोड को छोड़कर कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, तो ऐसे सेल को इजीली रिचार्ज किया जा सकता है. अगर हम एक रिवर्स पोलैरिटी की बैटरी उससे कनेक्ट कर दें, तो जो भी सेल है वो रिचार्ज किया जा सकता है. सो द निकल कैडमियम बैटरी डिलीवर्स अ कांस्टेंट वोल्टेज throughout its lifetime, since the voltage
यानी since the EMF is concentration independent, as all the substances involved in the net cell reaction are pure solid or pure liquid. Students, now we will be talking about 15.3, and that is mercury battery. The mercury battery consists of a zinc anode amalgamated with mercury in contact with strongly alkaline electrolyte containing zinc oxide and mercury 2 oxide. तो यहां पर एनोड क्या है? जिंक. कैसा जिंक है? जिंक विच इज अमलगमेटेड विथ मर्क्यूरी. जो एनोड है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ स्ट्रांगली अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रांगली अल्कलाइन है, यानी इसमें KOH मिला हुआ है, कंटेनिंग जिंक ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड. तो ये है इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन है जिसमें जिंक ऑक्साइड और मर्क्यूरी 2 ऑक्साइड इंक्लूडेड है. द कैथोड इज अ ग्रेफाइट रॉड which serves as an inert electrode. The entire battery is contained in a stainless steel cylinder. अब हम देखते हैं the interior section of a mercury battery. तो सबसे पहले जो यहां पर कैथोड है, यानी ग्रेफाइट रॉड, ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करती है. यहां पर एनोड क्या है? जिंक मर्क्यूरी का जो अमलगम है वो एनोड का काम करता है. और ये बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंटेनिंग KOH and paste of ZNO and HgO. So this is the interior section of a mercury battery. साइन देख लीजिए. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का साइन क्या होता है? नेगेटिव. और कैथोड का साइन क्या होता है? पॉजिटिव. बात करते हैं द सेल रिएक्शंस which take place in a mercury battery. At anode, zinc Hg plus 2OH minus gives ZNO solid plus H2O plus 2 electrons. वहीं at cathode, HgO solid plus H2O plus 2 electrons gives Hg liquid plus 2OH minus. ये रिएक्शंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ हमें देखना चाहिए कि रिएक्शंस कैसे होते हैं. नेट सेल रिएक्शन की बात करें, इन दोनों को हम अगर ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा ZnHg plus HgO solid gives ZNO solid plus Hg liquid. So this is the net cell reaction in a mercury battery. देखिए mercury battery के बारे में. The mercury battery provides a constant voltage of 1.35 volt throughout its life. This is possible because the net cell reaction involves only pure components, pure solids and pure liquids, and EMF of the cell is concentration independent. ये जो सेल है इसका EMF कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि केवल प्योर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स. और EMF कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ. द मर्क्यूरी बैटरी हैज हायर कैपेसिटी एंड लॉन्गर लाइफ, which makes it ideal for use in pacemakers, hearing aids, electric watches, etc. So that's it about mercury battery. Students, अब इस लेक्चर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्यूल सेल्स. टॉपिक नंबर 15.4.
A hydrogen dash oxygen fuel cell consists of an electrolytic solution such as KOH solution and two inert carbon electrodes. Hydrogen and oxygen are bubbled through the anode and cathode compartments. तो फ्यूल सेल कैसे बनता है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम यूज करते हैं KOH, इलेक्ट्रोड्स के तौर पर हम यूज करते हैं टू इनर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स, एनोड से हम बबल करते हैं हाइड्रोजन गैस को और कैथोड से हम बबल करते हैं ऑक्सीजन गैस को. सो दिस इज द सेटअप ऑफ फ्यूल सेल. अब हम देखते हैं व्हाट इज द सेल रिएक्शन which takes place inside a fuel cell. तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड की. एनोड पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है H प्लस में. रिएक्शंस की अगर बात करें तो 2H2 गैस प्लस 4OH माइनस. OH माइनस क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में KOH है. गिव्स 4H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर जो ऑक्सीजन है O2 वो रिड्यूस हो जाता है O2 माइनस में. सो O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 4OH माइनस. मेनली हमें नेट सेल रिएक्शन देखना चाहिए. नेट सेल रिएक्शन इफ वी ऐड देम, सो द नेट सेल रिएक्शन इज 2H2 गैस plus O2 gas gives 2H2O liquid. यानी ये जो सेल रिएक्शन है वो बेसिकली एक कंबशन रिएक्शन है. ड्यू टू दिस कंबशन रिएक्शन a cell potential is developed in the fuel cell. ये आगे देखिए. The standard EMF of the cell, कौन सा सेल? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. The standard EMF of the cell is 1.23 volt. EMF positive है, इसका मतलब which indicates that the cell reaction is spontaneous under standard conditions. The porous carbon electrodes, जो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं वो कैसे हैं? पोरस हैं, उसमें होल्स हैं काफी सारे. The porous carbon electrodes serve as electrical conductors and also provide the necessary surfaces for the decomposition of molecules into atomic species prior to electron transfer. यानी जो कार्बन इलेक्ट्रोड है ना सिर्फ वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह काम करते हैं बट वो सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स आकर एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं. अब देखिए ये जो फ्यूल सेल है उसकी असेंबली यानी उसका सेटअप कैसा दिखता है. तो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स पोरस कार्बन से बने हैं. पोरस कार्बन कंटेनिंग निकल. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? KOH सॉल्यूशन. एक तरफ से हम H2 एंटर कराते हैं और दूसरी तरफ से O2 एंटर कराते हैं. यानी एनोड पर भेजते हैं H2 और कैथोड से भेजते हैं O2. ये आपस में रिएक्शन जब करती हैं तो इस रिएक्शन की वजह से एक सेल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है which can be used to power electrical devices. अब आगे देखिए. Unlike batteries, fuel cells do not store chemical energy. ये chemical energy को store नहीं करते हैं. Reactants must be constantly resupplied and products must be constantly removed from a fuel cell. बार बार रिएक्टेंट्स को सप्लाई करना है और प्रोडक्ट्स को रिमूव करना होता है फ्रॉम अ फ्यूल सेल. The fuel cells are not widely used
The most successful application of fuel cell till date has been in space vehicles to produce water needed for the consumption by astronauts. Lastly, हम पढ़ेंगे lead storage battery के बारे में. The lead storage battery commonly used in automobiles consist of 6 identical cells joined together in series. It is a reversible cell acting as electrochemical cell when discharged, and it functions as electrolytic cell during charging process. The reactions occurring at anode and cathode get reversed during charging and discharging process. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये एक्ट करता है जब ये डिस्चार्ज हो रहा होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ये एक्ट करता है जब ये चार्ज हो रहा होता है. सेल रिएक्शंस रिवर्स हो जाते हैं. The cell reactions occurring at anode and cathode get reversed during charging and discharging process. थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी का असेंबली किस तरह से सेटअप किया जाता है. Each cell of a lead storage battery has a lead anode and a cathode made of lead dioxide powder. एनोड किसका बना है? लेड का. और कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड डाइऑक्साइड पाउडर पैक्ड इन अ मेटल प्लेट, लेड ग्रिड. तो लेड का एक ग्रिड है, जैसे जाली वाला होता है ना मेटल, तो लेड के एक ग्रिड में लेड डाइऑक्साइड पाउडर पैक्ड है, और ये काम कर रहा है कैथोड का. द एनोड इज ऑल्सो अ लेड ग्रिड with interstices filled with spongy lead. Both the cathode and the anode are immersed in an aqueous solution of sulfuric acid. यानी यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? Sulfuric acid, which is 35% by weight, which acts as an electrolyte. तो एक बार और, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? H2SO4 35% बाय वेट. एनोड कौन है? लेड. कैथोड कौन है? लेड डाइऑक्साइड. लेड डाइऑक्साइड को पैक करके हम रखते हैं एक लेड के ग्रिड में. अब हम जरा डायग्राम के थ्रू सीखते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी किस तरह से दिखती है. पहले बात करी जाए एनोड की. एनोड बनता है स्पॉन्जी लेड से, और जो भी स्पॉन्जी लेड है वो एक लेड के ग्रिड के अंदर पैक्ड होती है. फिर कैथोड की बात करी जाए तो कैथोड होता है पाउडर्ड PbO2, और जो पाउडर्ड फॉर्म में PbO2 है वो भी एक लेड के ग्रिड में पैक्ड है. इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4 35% बाय वेट. तो एनोड को हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करते हैं और कैथोड को पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं. सो दिस इज द लेड स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस. ओके, ये अब रिएक्शंस की बात करते हैं. ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एट एनोड, Pb is oxidized to Pb2 plus and an insoluble white precipitate of PbSO4 is formed. मतलब एनोड पे क्या होगा? Pb चला जाएगा Pb2 प्लस में, और Pb2 प्लस H2SO4 के साथ कंबाइन करके बना देगा white precipitate of PbSO4, which remains within the lead grid. यानी जो PbSO4 है वो लेड ग्रिड के विदिन ही रहेगा. At cathode, Pb plus 4 from PbO2 is reduced to
Pb plus 2 and PbSO4 again precipitates out. As the cell is discharged, the interstices of both lead grids get filled with PbSO4. मेन चीज क्या याद रखनी है, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Pb ऑक्सीडाइज होकर बना देगा Pb2+, और Pb2+ H2SO4 के साथ मिलकर PbSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा, Pb+4 का। Pb+4 कहां से आ रहा है, फ्रॉम PbO2। सो एट कैथोड Pb+4 is reduced to Pb+2 and PbSO4 again precipitates out. इसका मतलब एनोड पर भी PbSO4 बनेगा, कैथोड पर भी PbSO4 बनेगा। अब आइए हम सेल जो भी रिएक्शन हो रहे हैं उन रिएक्शंस को देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस। एट एनोड Pb solid plus SO4 2- gives PbSO4 solid plus 2 electrons. At cathode PbO2 solid plus SO4 2- plus 4H plus 2 electrons gives PbSO4 solid plus 2H2O liquid. और अगर नेट सेल रिएक्शन देखा जाए, so net cell reaction is Pb solid plus PbO2 solid plus 2H2SO4 gives 2 PbSO4 solid plus 2H2O liquid. So this is the net cell reaction for a lead storage battery. आगे देखिए, under normal operating conditions each cell produces a potential of 2 volt. Thus, a total of 12 volt from 6 cells is used to power the ignition circuit of the automobile and its other electrical devices. So total 12 volt from 6 cells is used to power the ignition circuit of the automobile and other electrical devices. Okay. The lead storage battery is represented as Pb/PbSO4, एनोड पे ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, स्लैश H2SO4 35% एक्वस सोल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है, स्लैश PbSO4 स्लैश PbO2, Pb, ये कैथोड है और कैथोड पर PbO2 रिड्यूस हो रहा है PbSO4 में। The anode and cathode both are of metal dash insoluble metal salt dash anion type. दोनों ही anode as well as cathode are of metal dash insoluble salt dash anion type. Okay. The cell reactions are easily reversed if the PbSO4 is freshly precipitated, but on long standing, काफी देर तक अगर पड़े रहता है तो PbSO4 changes its crystalline structure and ages to a less reactive form, which cannot be reconverted back into Pb and PbO2. यानी अगर PbSO4 फ्रेशली प्रेसिपिटेट हुआ है तो उसको हम वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं Pb और PbO2 में, पर अगर ये काफी टाइम तक प्रेसिपिटेट हो चुका है, काफी टाइम पहले से प्रेसिपिटेट हुआ है, तो ऐसे ही पड़े रहने से क्या होता है, ये अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है PbSO4 एंड कन्वर्ट्स इनटू अ लेस रिएक्टिव फॉर्म which cannot be reconverted back into Pb and PbO2. यानी तुरंत ही अगर हम चार्ज करें, बहुत ज्यादा टाइम तक ना पड़े रहे, तब तो वो बैटरी वापस से रिचार्ज हो जाती है, रिएक्शन रिवर्स चला जाता है। पर अगर बहुत टाइम तक ये ऐसे ही पड़ा रहे बिना चार्ज हुए, तो जो PbSO4 है
वो अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज करके एक लेस रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सेल रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा। 4 aspects of the operation of a lead storage battery are worth noting. First, there is no salt bridge or porous barrier, and both the electrodes are immersed in the same solution. This is because the oxidizing agent कौन है? PbO2, and reducing agent कौन है? Pb, as well as their oxidation and reduction products PbSO4. जब PbO2 रिड्यूस होगा क्या बनेगा? PbSO4. जब Pb ऑक्सीडाइज होगा क्या बनेगा? PbSO4. So oxidizing agent, reducing agent, as well as their oxidation and reduction products are pure solids and will not migrate to the other half cell. ये सब PbO2, Pb, PbSO4, all of them are pure solids and will not migrate to the other half cell. Effect है lead storage battery का. Second is the battery is rechargeable. That is, normal electrochemical reactions are reversed by applying an external voltage at the cathode and anode. मतलब इस स्टेज पर ये जो बैटरी जब हम चार्ज करते हैं, एट दिस स्टेज इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल. जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इट बिहेव्स एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. The third aspect is, as the battery is used, the electrolytic solution becomes dilute as water is produced and H2SO4 is used up. अगर हम नेट सेल रिएक्शन को देखेंगे तो वहां हम पाएंगे कि जैसे जैसे रिएक्शन होता है वैसे वैसे H2SO4 का अमाउंट कम होता जाता है और वाटर का अमाउंट बढ़ता जाता है. H2SO4 is used up and H2O is produced in the reaction. Thus, the density of electrolytic solution decreases. ज्यादा वाटर होगा और कम H2SO4 होगा, इसका मतलब है कि the density of the electrolytic solution decreases and the degree to which the battery has been charged can be checked by measuring the density of the electrolyte with a hydrometer. So ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होगा वैसे वैसे सॉल्यूशन की यानी इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी कम होती जाएगी. डेंसिटी कम क्यों होती जाएगी? अगर हम नेट सेल रिएक्शन देखें तो वहां हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन होता है वैसे वैसे H2SO4 यूज अप होता जाता है जबकि वाटर प्रोड्यूस होता जाता है, और वाटर प्रोड्यूस होगा H2SO4 कम होगा तो सॉल्यूशन की डेंसिटी कम होती जाएगी. और द डिग्री टू विच द बैटरी हैज बीन चार्ज्ड कैन बी चेक्ड by measuring the density of the solution with a hydrometer. Fourth, the temperature coefficient for a lead storage battery is 1.5 into 10 to the power minus 4 volt per centigrade. That is, there is a decrease in voltage of 1.5 into 10 to the power minus 4 volt for every degree drop in temperature. Thus, even for 40 degree centigrade change in temperature, the decrease in voltage amounts to only कितना होगा?
1 डिग्री में इतना होता है, तो 40 डिग्री में कितना होगा? 1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 40. So for 40 degree change in temperature, the decrease in voltage amounts to only 6 into 10⁻³ volt, which is about 6 into 10⁻³ upon 12 into 100, यानी 0.05% of the operating voltage. This change is almost insignificant. यानी ये जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है, इनके वोल्टेज पर टेम्परेचर से बिल्कुल ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता. ये with the decrease in temperature, the viscosity of the electrolyte increases. अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी गाढ़ापन बढ़ जाएगा. So the viscosity of the electrolyte increases and the ions move much more slowly in viscous medium, leading to a decrease in the power output of the battery. Thus, people living in cold climates have trouble in starting their cars. क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी. विस्कोसिटी बढ़ जाएगी इसलिए आयंस विल मूव मच मोर स्लोली इन विस्कस मीडियम, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन द पावर आउटपुट ऑफ द बैटरी. और पावर आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो कार्स को स्टार्ट करने में लोगों को ट्रबल होती है, वो जो कि कोल्ड क्लाइमेट्स में रहते हैं. So that's it for lead storage battery. अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं. आइए, let us do a question. Okay students, now there is a question for you. During the discharge of a lead storage battery, the density of H2SO4 falls from ρ1 gram per cc to ρ2 gram per cc. H2SO4 of density ρ1 gram per cc is X% by weight, and that of density ρ2 gram per cc is Y% by weight. The battery holds V liters of acid before discharging. Calculate the total charge released at anode of the battery. तो एक बार आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, सोचिए इसको किस तरह से करा जाएगा और उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखिए. इस क्वेश्चंस को करने के लिए जो रिएक्शंस की जरूरत है वो रिएक्शंस मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं. तो एक बार अटेम्प्ट करिए. एक बार फिर से रिएक्शंस देख लेते हैं. द रिएक्शंस अकरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग आर एट एनोड Pb plus SO4 2 minus is giving PbSO4 plus 2 electrons. At cathode, PbO2 plus 4H plus SO4 2 minus plus 2 electrons is giving PbSO4 plus 2H2O. So these are the reactions occurring at anode and cathode. और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोड आर. तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें. सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि व्हाट इज द मास ऑफ एसिड सॉल्यूशन बिफोर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी को मैंने शॉर्ट में LSB लिख दिया है. So what is the mass of acid solution before discharge of lead storage battery? Acid solution की वॉल्यूम कितनी है? V liters. Acid solution की डेंसिटी कितनी है? ρ1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
यानी इसका मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, ρ1 ग्राम पर सीसी, और वॉल्यूम कितनी है, V लीटर्स। और हम जानते हैं कि 1 लीटर इज 1000 सीसी। यानी वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन बिफोर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ये हो जाएगा 1000 इंटू ρ1 इंटू V। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन बिफोर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। अब इस एसिड सॉल्यूशन में X% H2SO4 है। यानी अगर मैं बोलूं मास ऑफ H2SO4 बिफोर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो मास ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, टोटल मास एसिड सॉल्यूशन का है 1000 इंटू ρ1 इंटू V। तो H2SO4 का मास क्या हो जाएगा, इसका X%, यानी दिस इंटू X अपॉन 100। So mass of H2SO4 before discharge of lead storage battery is equal to 10 into ρ1 into V into X. This is the mass of H2SO4. आगे देखिए, अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, द नेट रिएक्शन इज Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 gives 2PbSO4 plus 2H2O. From the reaction, it is evident that the moles of electrons exchanged, lost at anode and gained at cathode. Moles of electrons exchanged का मतलब क्या है, lost at anode and gained at cathode is equal to the moles of H2SO4 consumed और moles of H2O produced। ये बात हमने कैसे कही, हम इस रिएक्शन में जानते हैं कि एनोड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, कैथोड पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है। मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड फॉर दिस रिएक्शन इज 2 और moles of H2SO4 consumed is also 2 and moles of water produced is also 2. So इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि moles of electrons exchanged is equal to the moles of H2SO4 consumed or moles of H2O produced. Let the moles of H2O produced be X. Suppose in this reaction X moles of water are produced. Then अब हम क्या क्या कह सकते हैं, आगे देखते हैं। अभी तक ये नेट सेल रिएक्शन है और हमने ये माना कि लेट अस से द मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी इज X. सो अगर वाटर के X मोल बने हैं, इसका मतलब मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ LSB is equal to 18x gram and mass of H2SO4 consumed during discharge of LSB is equal to 98x gram। क्योंकि अगर वाटर के x मोल बने हैं, इसका मतलब H2SO4 के x मोल कंज्यूम हुए हैं। So mass of H2SO4 consumed during discharge of LSB is equal to 98x gram। तो इसके बाद इसके अगर 98x ग्राम इसके कंज्यूम हो रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, मास ऑफ H2SO4 अगर 98x ग्राम इसके कंज्यूम हो रहे हैं,
तो मैं कह सकता हूं मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए इसका इनिशियल मास कितना था H2SO4 का, हमने निकाला था ना। इनिशियल मास इसका कितना था 10V-ρ1x। ये H2SO4 का इनिशियल मास था और इसमें से 98x ग्राम कंज्यूम हो गया, स्मॉल x। सो मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी कितना हो जाएगा, इतना। ये लिख सकते हैं हम। यहां तक देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अभी अगर हम बात करें व्हाट इज द मास ऑफ एसिड सॉल्यूशन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, तो ये जो पूरा सॉल्यूशन है उसका मास पहले कितना था 1000V-ρ1। अब इसमें से जो H2SO4 है उसका वेट क्या हो गया, कम हो गया, कितने से, बाय 98x। और जो वाटर है उसका वेट बढ़ गया, कितने से, बाय 18x। इसका मतलब है मास ऑफ एसिड सॉल्यूशन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ये हो जाएगा 1000 इंटू V इंटू ρ1 माइनस 80x। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ H2SO4, ये जो एसिड सॉल्यूशन है इसमें परसेंटेज ऑफ H2SO4 कितना है, परसेंटेज ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो H2SO4 का जो परसेंट है वो होगा मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज, मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय मास ऑफ एसिड सॉल्यूशन आफ्टर डिस्चार्ज इंटू 100। तो ऐसा करने से मुझे मिल जाएगा परसेंटेज ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, और परसेंटेज ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ये हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, परसेंटेज ऑफ लेड H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी ये दिया हुआ है y%। तो ये सारी चीजें अब इनकी वैल्यूज यहां पर डालते हैं, y डालते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब देखिए द परसेंटेज ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ये परसेंट हमें कितना दिया गया है y। व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4 आफ्टर डिस्चार्ज, ये होगा 10V-ρ1x माइनस 98x। और मास ऑफ एसिड सॉल्यूशन आफ्टर डिस्चार्ज ये कितना होगा 1000V-ρ1 माइनस 80x। सो दिस इंटू 100 अगर करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में v पता है, ρ1 पता है, x पता है, y पता है, सिर्फ ये स्मॉल x की वैल्यू नहीं पता है। पर अगर बाकी सारी वैल्यूज पता है तो हम स्मॉल x भी निकाल सकते हैं। सो स्मॉल x
can be calculated. Small x can be calculated as all other quantities are known. All other quantities are known. और ये x निकालने का फायदा क्या है? x हमने क्या माना था? Moles of water which are produced, and it is also it will be equal to moles of electrons exchanged. यानी हम फाइनली क्या कह सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स of electrons released at anode is equal to x. और चार्ज अगर पूछा है तो टोटल चार्ज रिलीज्ड एट एनोड ये कितना हो जाएगा? 1 मोल पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे. तो x मोल पे कितना चार्ज हो जाएगा? x into f. And that is the answer to this question. So that's it for electrochemistry. यहां हमारा चैप्टर खत्म होता है. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. And as far as possible, we will try to answer your doubts. So that's it for this chapter. See you in the next chapter. Thank you.